Hello, good morning to all of you dear students. Since from the last time we are in the continuations of the chapters, that is inheritance and variations. In the last video lecture in that we have studied about the monohybrid cross and the monohybrid ratio, and before that about the terminology used in the genetics. ठीक है, तो मेंडल्स ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया था तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी ही पोस्टुलेटेड द टू लॉज ऑफ द इनहेरिटेंस. तो वही लॉज को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आफ्टर द स्टडी ऑफ द मेंडल्स monohybrid cross by the Mendels, he postulated two laws. The one which is out of that two, the one is called the law of dominant or dominance. Yeah, law of dominant ही हम लिखेंगे. Now this law of dominant, even though it is not universal, but it is applicable in most of the cases, and it is defined as when a cross is made in between the two pure parents. Pure here means the homozygous parents, pure parents, by considering one pair of contrasting character, or instead of by considering we can also write here by considering the two characters, yeah, one character in each parents, yeah, which are differ from each other in one pair of contrasting characters. So two pure parents by considering one pair of contrasting characters, then the outcome that the two characters only one character is expressed or appear in F1 generation offspring. The characters appear is called dominant character. Hence this law is called the law of dominant. मेंडल्स ने पी प्लांट में जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी किया था, he crosses ठीक है the two parents by considering one pair of the contrasting characters. So all the 7 pair of the contrasting characters he studied one by one, and he observed that in all the crosses out of the two characters in the two different parents, only the characters of the one parent is appear in F1 generation offspring. The character which appear in the F1 generation he called the dominant characters, and the character which is not appear he called the recessive characters. तो जो character दिखा इसलिए उसको dominant कहा गया, और इसलिए इसको कहा जाता है law of the dominance. So when a cross is made between the two parents, pure parent, by considering one pair of contrasting characters, so out of the two characters, only the one character is appear in F1 generation offspring. The character appears is called dominant character, and this is called the law of dominant. We can explain this law by taking the examples. Suppose a cross is made in between the two parents. So here I write the parent, the one is female and the other one is male. Here the character which we consider in each parent, that is called also the phenotype. Suppose in female parent plants we consider the characters such as the colors of flower, and that is purple flowers, and in the other parent, that is in the male, say white flowers. तो जब ये कैरेक्टर्स हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग है, एक में कलर्ड फ्लावर है और दूसरे में व्हाइट फ्लावर्स है। फॉर दैट हम यहाँ पर लेंगे जीनोटाइप
तो जीनोटाइप विल बी कैपिटल P और व्हाइट के लिए स्मॉल p। देन गैमेट्स, तो गैमेट्स में यहां पर होमोजाइगस कंडीशन है कैपिटल P, यहां पर भी स्मॉल p होमोजाइगस है तो स्मॉल p। और F1 जनरेशन में कैपिटल P और स्मॉल p, ठीक है। इवन दो इट इज नॉट प्योर, इट इज हाइब्रिड, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर इट विल बी द पर्पल कलर फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो ये कहा गया कि दो कैरेक्टर लिए गए थे पेरेंटल प्लांट्स में, और दो कैरेक्टर में से एक ही पेरेंट का कैरेक्टर जो है ये F1 जनरेशन में अपीयर होता है, एक्सप्रेस होता है। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसको कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। फिर इसके बाद में जो सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस बाय द मेंडल्स। देन इसके बाद में द अदर लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ एंड सेकंड हम देख रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Law of segregation. Law of segregation is also called the law of unity of gametes, law of the unity of gametes. Now what this law state? This law stated when the two contrasting characters or the alleles of the two contrasting characters are brought together in a hybrid, they remain together in a hybrid without mixing and separate or segregate during the formation of gametes. The gametes form which are pure for their particular phenotype or traits and expressed in the F2 generation. तो जो गैमेट बनते हैं वो हमेशा अपने कैरेक्टर के प्रति प्योर होते हैं, उनका कैरेक्टर डाइल्यूट नहीं होता है, और आगे जब उनको एक्सप्रेशन का चांस मिलता है तो नेक्स्ट जनरेशन में वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर तुमने दो अलग अलग कैरेक्टर के गैमेट्स को एक साथ लाए, दो अलग अलग कैरेक्टर्स के एलिल्स को एक साथ लाए, तो वो दोनों एक साथ जरूर रहते हैं, भले कैरेक्टर एक दर्शाएंगे लेकिन आपस में वो मिक्सअप नहीं होते हैं। इसलिए ये बताया जब गैमेट बनने के बाद वो सेपरेट होते हैं तो जो गैमेट बनते हैं, ठीक है, वो प्योर होते हैं अपने कैरेक्टर्स के प्रति। मिसाल के तौर पर हम यहीं पर ही देखते हैं कि यहाँ पर सपोज पर्पल फ्लावर वाले प्लांट को क्रॉस किया गया है व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से, और यहाँ F1 जनरेशन में पर्पल फ्लावर्स वाले प्लांट्स, ठीक है, आते हैं। तो यहाँ पर कैसा है कि जो गैमेट्स है या जो एलील है वो दोनों भी कैरेक्टर्स के हैं, अरे पर्पल कलर्स के लिए भी है और व्हाइट कलर्स के लिए भी है, लेकिन यहाँ पर अपीयर क्या हो गया पर्पल। अब अगर मान लो हमने इसका सेल्फिंग किया, अरे सेल्फिंग अगर हम करते हैं किसका कि पर्पल कलर हेटेरोजाइगस, ठीक है, फ्लावर क्रॉस विद अगेन पर्पल कलर, लेकिन ये कैसे है हेटेरोजाइगस, यानी कैपिटल P स्मॉल p क्रॉस विद दैट ऑफ द कैपिटल P स्मॉल p। तो यहाँ अब इसके हम गैमेट बनाएंगे तो गैमेट बनेगा कैपिटल P एक और दूसरा स्मॉल p, और यहाँ गैमेट बनेगा कैपिटल P एंड द सेकंड विल बी स्मॉल p, ठीक है। हियर वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व और सी दैट दिस टू एलील्स which were present together, which were remain together earlier related to the purple colors of flower during the formation of the gametes, these two alleles are separated here or separated here, segregated here, and that's why it is called the law of segregation. And when these two alleles of the two different parents they are crossed with each other, then again they express the other phenotype. Let's see here. This capital P, which is stand for the purple color of flower, is recombined with the other capital P of the other parents that also stand for the purple color of flower. So the recombination will be capital P, and the phenotype will be purple. और अगर मान लो ये कैपिटल P स्मॉल p से लेंगे, फिर कैपिटल P स्मॉल p अगेन ये भी पर्पल आएगा, और ये स्मॉल p कैपिटल P अगेन कैपिटल P स्मॉल p पर्पल आएगा। लेकिन जब ये स्मॉल p को अगर हम मिलाते हैं तो रिकॉम्बिनेशन आया, दोनों भी प्योर फॉर्म में रेसिडुअल कंडीशन, और यहाँ पर फ्लावर पैदा होगा व्हाइट, मतलब यहाँ पेरेंट जो थे वो पर्पल कलर वाले फ्लावर्स वाले थे और उनमें ऑफस्प्रिंग जो आया वो व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर कहाँ से आ गया, इसका मतलब व्हाइट कलर का जीन्स या एलील मौजूद था लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा था जब वो डोमिनेंट के साथ में था, लेकिन जब वो सेपरेट हुआ
और होमोजाइगस कंडीशन में आया तो दोबारा एक्सप्रेस हो गया, मतलब यहाँ पर सेग्रीगेट हो गया और जो गैमेट्स सेग्रीगेट हुआ था वो अपने कैरेक्टर के प्रति बिल्कुल प्योर था, ठीक है, उसने वही कैरेक्टर रखा था, उसका डायल्यूशन नहीं हुआ था, मिक्सिंग हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है, और बाद में वो एक्सप्रेस हुआ, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट्स। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल टू एनी केसेस इन एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कभी भी अगर गैमेट्स जो है बनते हैं तो जो पेयर रहते हैं एलील के वो सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये यूनिवर्सल हुआ था मेंडल का, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंट ये यूनिवर्सल नहीं हुआ था, क्योंकि इसके अलावा इसको एक्सेप्शन है, एंड देयर इज आल्सो कोडोमिनेंट, देयर इज आल्सो इनकम्प्लीट डोमिनेंट, बट देयर इज नो एक्सेप्शन टू द सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन इज ऑलवेज देयर एनीवेयर, ओके। तो यहाँ पर हो गए ये दो लॉज जिसको मेंडल फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब इसके बाद में मेंडल्स ने थर्ड लॉ भी प्रपोज किया था जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसके लिए फर्स्ट ही एक्सप्लेन अबाउट द डायब्रेड क्रॉस एंड डायब्रेड रेशियो, एंड ऑन दैट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द डायब्रेड क्रॉस ही एक्सप्लेन अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने स्टडी किया था कि एक ऐसा क्रॉस दो पेरेंट के बीच में जो एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर से डिफर हो, ठीक है, लेकिन अब हम ऐसा क्रॉस स्टडी करेंगे इन बिटवीन द टू प्योर पेरेंट व्हिच आर डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मींस द टू कैरेक्टर टुगेदर इन अ वन पेरेंट ऑफ प्लांट्स। तो वी विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।